Dear students, this is Imran Kazmi and here is your lecture 14 of Programming Fundamentals. In the previous lecture, we were working on arrays and today we are going to start our new topic. We are going to start functions over here. In this lecture, we will work on the following contents. We will define what is function. We will discuss some advantages of using functions. We will discuss the classification of functions. We will discuss the working of functions, function prototypes, and function definitions. In this lecture, we will try to cover these contents related to functions. So first of all, what is function? A function is a self-contained block of code or subprograms with a set of statements that perform some specific task or coherent task when it is called. Function is nothing more than a block of statement, and that block of statement have some specific task, and this block of statement would start its working or perform its job when it is called. Until or unless the function is not called or the block of statement is not called, it will not perform its function. So फंक्शन हमारा एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है और इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का हम कोई स्पेसिफिक टास्क असाइन करेंगे, कोई असाइनमेंट देंगे, कोई इसका मखसूस मकसद होगा, कोई काम होगा, और ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट सिर्फ उसी वक्त अपना टास्क परफॉर्म करेगा जब इसे कॉल किया जाएगा। इवन दो कि ये प्रोग्राम में एग्जिस्ट कर रहा होगा, जब तक आप इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को कॉल नहीं करेंगे, ये अपनी वर्किंग परफॉर्म नहीं करेगा या अपना टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। सो एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जिसने अपना टास्क सिर्फ उसी वक्त परफॉर्म करना है जब इसको कॉल किया जाएगा। बेसिकली द जॉब ऑफ अ फंक्शन इज टू डू समथिंग, अ स्पेसिफिक टास्क इट हैज टू परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, it is something like to hire a person to do some specific task like every 6 months servicing a bike or hand over to it. So जिस तरह से हम कहें कि जी एक पर्सन को हम एक टास्क असाइन करते हैं कि उसने बाइक की सर्विस करनी है, तो जब भी हम उसे कॉल करेंगे वो बाइक की सर्विस करके सर्विस वाला बाइक मीन सर्विस शुदा बाइक हमारे हवाले कर देगा। तो जिस तरह से हम एक पर्सन हायर करते हैं और उसको एक टास्क असाइन किया गया होता है और उसने वो अपना मखसूस टास्क परफॉर्म करना होता है, जिस तरह से हम अपने माली को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि जी हमारे लॉन की सफाई कर दे, लॉन की सेटिंग कर दे, उसको एक टास्क असाइन किया गया। तो इसी तरह से आप इसको फंक्शन को इस तरह से ले सकते हैं कि हम एक पर्सन हायर करेंगे जिसको कोई ना कोई टास्क होगा और जब हम उसे कॉल करेंगे तो वो अपना टास्क परफॉर्म करेगा। Every C++ program have at least one function. हर C++ प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन आपका जरूर होता है, and that function is main. None of the C++ program is there without main function. So main is compulsory function in every C++ program. Why we use functions? What are the benefits of using functions? So there are several advantages of modularizing a program into function. Whenever you need to modularize a program, mean हमें एक प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करना होगा,
पार्ट्स में कन्वर्ट करना होगा और सब प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करना होगा। हम एक प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में या पार्ट्स में या सब प्रोग्राम्स में या फिर फंक्शंस में क्यों कन्वर्ट करते हैं? एक प्रोग्राम को पार्ट्स बनाने के या सब प्रोग्राम्स बनाने के या फंक्शंस बनाने के क्या फ़ायदे हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ कन्वर्टिंग a big program into smaller functions. The first advantage, reduction in code redundancy. Redundancy means duplication. Sometime it happens that during programming we need to rewrite the code again and again, and some duplication of statements occur. So if we have developed functions, there would be no redundancy, mean duplication आपकी नहीं आएगी अगर आपने functions का इस्तेमाल किया है, अगर आपने modules का इस्तेमाल किया है, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आपने programs को parts में divide किया हुआ है तो फिर आपकी कोड की redundancy जो है वो नहीं आएगी, mean duplication उसमें नहीं आएगी। सिमिलरली इनेबल कोड रीयूज, अगर आप फंक्शन यूज कर रहे हैं, आपने प्रोग्राम्स में फंक्शंस में काम किया हुआ है, तो आप कोड को रीयूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप किसी को कोई टास्क असाइन कर देते हैं किसी फंक्शन को, तो जब भी आपको वो टास्क परफॉर्म कराना होता है तो आप उसे कॉल कर लेते हैं, रादर देन कि आप कोड रीराइट करें, यू सिंपली कॉल दैट फंक्शन। तो इससे हम रीराइटिंग से बच जाते हैं, हम कोड को रीयूज कर लेते हैं। बेटर रीडेबिलिटी, सिंपल, जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है और हर पार्ट को कोई मखसूस टास्क असाइन किया होता है तो उसको समझना आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कि एज ए होल आप पूरे प्रोग्राम्स को पढ़ें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक प्रोग्राम जो है वो 1000 लाइंस का है और उसमें आपने मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म किए हुए हैं एज ए होल, उनमें कोई भी आपने सेपरेशन नहीं की, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग मुश्किल होगी एज़ कम्पेयर टू कि आपने उस प्रोग्राम्स को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और हर पार्ट को आपने कोई टास्क असाइन कर दिया है, तो उससे आपकी रीडेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, आप प्रोग्राम की अंडरस्टैंडेबिलिटी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, आप बेहतर तरीके से उसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे अगर आपका प्रोग्राम पार्ट्स में डिवाइड हो। देन इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग मीन कि अगर आपने पार्ट्स में प्रोग्राम को डिवाइड किया हुआ है तो आप अपने एक पार्ट का या एक फंक्शन का जो डाटा है वो दूसरे फंक्शन के डाटा के साथ उसकी शेयरिंग जो है वो आपकी मर्ज़ी पे है कि आप उसको हाइड करना चाहते हैं, एक्सेस देना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं या नहीं कर सकते या नहीं चाहते, ये आप पे डिपेंड करता है। आप बिल्कुल एक पार्ट आपका उसका एक अपना डाटा होगा, दूसरे पार्ट का या फंक्शन का अपना डाटा होगा, तो एक पार्ट का डाटा दूसरे पार्ट के डाटा के साथ शेयर होना है या नहीं होना ये डेवलपर की मर्ज़ी पे होगा, ये उस फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हाइड करना चाहता है या नहीं चाहता। सो आप इंफॉर्मेशन का जो एक्सेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं वाया यूजिंग फंक्शंस। तो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज सिंपली कॉल्ड इंफॉर्मेशन हाइडिंग, कि आप एक फंक्शन का जो डाटा है उसकी एक्सेस दूसरे फंक्शन में देते हैं या नहीं, ये डेवलपर की अपनी मर्जी। देन इम्प्रूव डिबगिंग एंड टेस्टिंग। अगर आपने फंक्शंस बनाए हुए हैं, पार्ट्स बनाए हुए हैं प्रोग्राम के, तो आपके लिए डिबगिंग और टेस्टिंग आसान हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1000 लाइन का प्रोग्राम बनाया है और उसमें आपको कोई एरर जो है वो ढूंढना पड़ जाए तो आपको पूरे प्रोग्राम जो है वो चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उस प्रोग्राम्स को पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और हर पार्ट को आपने कोई टास्क असाइन किया हुआ है, तो ऑब्वियसली जिस पार्ट में प्रॉब्लम आएगा
आप सिर्फ उसी पार्ट पे फोकस करेंगे, बजाय इसके कि आप बाकी पार्ट्स को जो है उस पे फोकस करें और उसमें एरर ढूंढते फिरें। तो बग्स को रिमूव करना स्ट्रक्चर्ड मेथड के ज़रिए या मॉड्यूल्स के ज़रिए या पार्ट्स के ज़रिए ज़्यादा आसान है एज़ कंपेयर टू कि आप एज ए होल जो है वो बग्स को आइडेंटिफाई करें। तो जब आपका प्रोग्राम पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो उसमें से बग्स रिमूव करना आसान हो जाता है एज़ कंपेयर टू कि आप पूरे प्रोग्राम को जो है वो उसमें से बग्स को ढूंढें, क्योंकि जिस पार्ट में प्रॉब्लम आएगा, जिस फंक्शन में प्रॉब्लम आएगा, आप सिर्फ उसी फंक्शन पे फोकस करेंगे, बाकी फंक्शंस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, और इससे आपकी डिबगिंग और टेस्टिंग जो है वो आसान हो जाती है। सिमिलरली अगर आपने टेस्टिंग करनी है तो डाटा जो है वो हर फंक्शंस को अलग-अलग से आप इनपुट कर रहे हैं और रिटर्न ले रहे हैं, तो टेस्टिंग भी कंपोनेंट वाइज, फंक्शन वाइज या मॉड्यूल्स के ज़रिए आसान है एज़ कंपेयर टू कि पूरे प्रोग्राम्स की टेस्टिंग की जाए। आप टेस्टिंग बाय पार्ट्स करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव टेस्टिंग आपको मिलेगी, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगी। अगेन, improved maintainability. As you know, programming is a mechanism of change. Whenever there is a change in environment, whenever there is a change in organization, whenever there is a change in surrounding, there would be change in your program. और प्रोग्राम कभी भी आपका जो है वो ऐसा नहीं होता कि आपने एक दफ़ा बना दिया तो थ्रू आउट द लाइफ वो वही रहेगा। रादर उसमें चेंजिंग्स जो है वो वक्त के साथ साथ आती रहेंगी, और अगर आप एज ए होल प्रोग्राम को डील कर रहे हैं और उसको आपको मेंटेन करना पड़े, उसमें चेंजिंग्स करनी पड़े, तो दैट वुड बी वेरी मच डिफ़िकल्ट एज़ कंपेयर टू कि अगर आपने उसे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है, तो फिर जिस मॉड्यूल में तब्दीली करनी होगी आप सिर्फ उसी मॉड्यूल्स को जो है वो टच करेंगे, उसी मॉड्यूल पे फोकस करेंगे, बाकी प्रोग्राम को जो है वो आपको उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब अगर आप फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें मेंटेनेबिलिटी आपकी आसान हो जाती है, क्योंकि इसमें जो है वो आप फंक्शंस पे फोकस करते हैं, पार्ट उस स्पेसिफिक पे फोकस करते हैं जिसमें आपको तब्दीली करनी होती है, बाकी पूरे प्रोग्राम को जो है वो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। So these are some of the reasons of converting a big program into a modular structure। और जब आप उसे मॉड्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, फंक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यू विल गेट दीज बेनिफिट्स। अगेन इनका रिव्यू कर लें। रिडंडेंसी आपकी या डुप्लीकेशन आपकी कम हो जाती है। कोड रीयूज आप कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने फंक्शन बना दिया, पार्ट बना दिया, तो फिर बार बार आप उसे कॉल करते रहेंगे, आपको दोबारा दोबारा री राइटिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप उसी प्रोग्राम कोड को रीयूज़ कर लेंगे। अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हो जाती है जब कोई चीज़ पार्ट्स में आपने काम किया हुआ हो। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इंफॉर्मेशन की एक्सेस जो है वो आपके कंट्रोल में होती है कि जी आप इंफॉर्मेशन एक्सेस दे रहे हैं या नहीं दे रहे। एंड सिमिलरली इम्प्रूव डिबगिंग, एरर रिमूविंग का प्रोसेस जो है वो इसमें आसान हो जाता है, टेस्टिंग आपकी आसान हो जाती है। एंड मेंटेनेबिलिटी एज वेल, आपकी मेंटेनेबिलिटी मीन जब भी आपको चेंजिंग्स जो है उस पर अप्लाई करनी होती हैं, तो अगर आपने प्रोग्राम पार्ट्स में डेवलप किया हुआ है, फंक्शंस की फॉर्म में डेवलप किया हुआ है, तो उसमें आपकी मेंटेनेबिलिटी भी आसान हो जाती है। आप सिर्फ उस पर्टिकुलर फंक्शन पे फोकस करते हैं जिसमें चेंजिंग रिक्वायर्ड है, बाकी प्रोग्राम्स को या बाकी फंक्शंस को जो है वो फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती। सो इससे आपकी मेंटेनेबिलिटी भी आसान हो जाती है। और जैसे आपको पता है कि ये एक जर्नल साइंटिफिक रूल है कि बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लिया जाए और फिर हर छोटी प्रॉब्लम का अलहदा से सलूशन जो है वो बना लिया जाए और देन उनको इंटीग्रेट करके ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाए।
तो ये बिल्कुल उसी साइंटिफिक मेथड को फॉलो किया गया है कि रादर दैन डेवलपिंग प्रोग्राम एज ए होल, develop the program in the form of functions, in the form of components, in the form of modules. तो जब आप functions या modules या components की फॉर्म में प्रोग्राम बनाते हैं तो वो डेफिनेटली आपके बड़े प्रॉब्लम्स को जो है ना वो सॉल्व कर देता है और आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाती है। When we talk about the classification of functions, we have simply two types of functions. We have standard library functions and user defined functions. So keep in mind, function is nothing more than a block of statement that that perform a coherent task of some kind or some specific task it simply perform. So it is nothing more than a block of statements. So function are basically of two types: library functions, standard library functions, and user defined functions. When we are talking about library function, system defined function cannot be modified. So these are the system defined functions. You cannot modify them and it can only read and can be used. स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस आपके ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि सिस्टम ने डिफाइन कर दिए होते हैं, उनका कोई ना कोई मखसूस टास्क होता है, आप उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते, आप जस्ट उन्हें रीड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. यू कैन नॉट मेक एनी चेंज इन द डिफाइंड फंक्शन, दे आर प्री डिफाइंड फंक्शंस. आप सिंपली उन्हें कॉल करके जो भी टास्क परफॉर्म करवाना है आप उनसे टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, बट यू कैन नॉट चेंज और मॉडिफाई दैट फंक्शन. These functions are supplied with every C++ compiler. Each and every compiler of C++ contain these functions. Source of these library functions are pre-compiled. इनका source code जो होता है वो already compile हो चुका होता है, and only object code get used by the user by linking to the code by the linker. Simply सोर्स कोड ऑलरेडी कंपाइल्ड होता है और ऑब्जेक्ट कोड उस वक्त लिंक होता है जब आप इसको यूज़ करते हैं, और उस वक्त फिर इसका ऑब्जेक्ट कोड जो है वो एक्टिवेट होकर आपका टास्क परफॉर्म करता है. आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, इनके प्री डिफाइंड टास्क हैं. आप सिंपली इन फंक्शंस को कॉल करेंगे और ये अपना टास्क परफॉर्म कर देंगे. Library functions are also called built-in functions. Their source code are written in header files. We have included header files like iostream.h, console input-output.h. In header files, these functions are present. इन functions को इस्तेमाल करने के लिए आपको उसकी relevant header files जो है वो include करनी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हमने सी इन या सी आउट यूज़ करना है तो उसके लिए हमने iostream.h इंक्लूड करते हैं. जब भी हमने क्लियर स्क्रीन या getch का फंक्शन यूज़ करना होता है तो उसके लिए हम कंसोल इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं. अगर हमें अल्फ़ाबेट्स को टू अपर या टू लोअर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम ctype.h हेडर फाइल यूज़ करेंगे. अगर हमने मैथमेटिक्स के कोई फंक्शन यूज़ करने हैं, जैसे पावर का फंक्शन है, स्क्वायर रूट का फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है, लॉग का फंक्शन है, तो उसके लिए math.h हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे. सिमिलरली अगर हमें स्ट्रिंग के कोई फंक्शन रिक्वायर्ड है, स्ट्रिंग लेंथ हमने कैलकुलेट करनी हो, स्ट्रिंग कॉपी करना हो या स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए string.h की हेडर फाइल है. तो जो भी हमने फंक्शन यूज़ करना है उसकी रेलिवेंट हेडर फाइल जो है वो प्रोग्राम में हम इंक्लूड करेंगे और उस फंक्शन को कॉल करेंगे, वो अपना टास्क परफॉर्म कर देगा. उसकी जितनी भी कोडिंग है वो सारी इन हेडर फाइल्स में मौजूद होती है. हमें फंक्शन की डिज़ायर्ड फंक्शन की रेलिवेंट हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी है और सिंपली उस फंक्शन को हमने कॉल करके यूज़ कर रहे हैं.
So they are built in, they are already developed and present in these header files. We simply need to include the header file and we will call that function and the function would perform its task. When we are talking about user defined functions, the user defined functions are defined by the user according to its requirement. They are not built in functions. They are developed by the user and user develop those functions according to its requirement. यूज़र अपनी मर्ज़ी से ये फंक्शन जो है वो डेवलप करेगा, अपनी मर्ज़ी से इसको टास्क परफॉर्म करेगा या टास्क असाइन करेगा. इसकी मॉडिफिकेशन और इसकी डेवलपमेंट की जिम्मेदारी सारी यूज़र पे होती है. सिंपल जनरल सिंटैक्स ऑफ दिस फंक्शन इज रिटर्न टाइप. आपका फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसकी टाइप क्या होगी? इंटीजर होगी, फ्लोट होगी, कैरेक्टर होगी. फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है सबसे पहले उसकी टाइप लिखते हैं, वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है. देन नेम ऑफ द फंक्शन, देन नंबर ऑफ आर्गुमेंट विद टाइप. जितने आप आर्गुमेंट इसमें पास करेंगे, जितनी वैल्यूज एक फंक्शन जो है वो इनटेक करेगा, उनको यहाँ पे आर्गुमेंट की सूरत में लिखना होगा और उसकी टाइप बतानी भी कंपलसरी है. जैसे आर्गुमेंट 1 टाइप 1, फॉर एग्जांपल टाइप 1 आर्गुमेंट 1 इज ऑफ इंटीजर टाइप, देन ओवर हियर यू विल राइट द टाइप ऑफ द आर्गुमेंट, then second argument with its type, then third argument with its type, and this process goes on. So if the function is getting some values from some other functions, we will write in the form of arguments. We will declare variable over here, we will get the values from other functions. तो जो भी हमारा फंक्शन वैल्यूज़ ले रहा होगा उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो उन वैल्यूज़ को रिसीव करेंगे. और अगर हमारा फंक्शन कोई वैल्यू गेट नहीं कर रहा किसी दूसरे फंक्शन से, तो यहाँ पे हम वाइड लिखेंगे. वाइड का मतलब ये होगा कि हमारा फंक्शन कोई वैल्यू किसी दूसरे फंक्शन से नहीं ले रहा. और अगर हम यहाँ पे बात करें रिटर्न टाइप की, तो अगर हमारा फंक्शन वैल्यू किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है तो उसकी हम यहाँ पे टाइप लिखेंगे. और अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो उस सूरत में हम वाइड लिखेंगे. तो अगर हमारे पास यहाँ पे बिगिनिंग में वाइड का वर्ड है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा फंक्शन कोई वैल्यू किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न नहीं कर रहा. वाइड शोज नथिंग, नथिंग, नो वैल्यू इज बीइंग रिटर्न if we have void over here. And if we have void over here instead of arguments, then it mean would be that no value is being taken by this function. So if the function is not taking any value, then you would write void over here, and if this function is not returning any value, then you would write void over here. So if void is before the name of the function and in the braces of the function, then it means that function is not getting any value. So if the function is getting some value, please place some variable with their types, and if it is returning some value, then the return type of that value, and if they are not returning, then write or put void over here. So void indicate no value. When user gets his own function, 3 things he has to know. जब भी हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन की बात करेंगे तो 3 चीज़ों के बारे में क्लियर होना चाहिए. एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन के लिए 3 चीज़ों की अहमियत है. 3 things must be kept in mind. फंक्शन डेक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप. फंक्शन डेक्लेरेशन या प्रोटोटाइप एक ही चीज़ होती है. फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल. जब भी हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन की बात करेंगे तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन की परफॉर्म करने के लिए
ये ज़रूरी है कि आपके प्रोग्राम में उसके तीनों कंपोनेंट्स जो है वो कंप्लीट हों। डेक्लेरेशन या प्रोटोटाइप भी उसका होना चाहिए, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल। Three things must be there in the program for a user defined function. Function declaration and prototype is the same thing. What is function declaration or prototype? Function declaration or prototype provides the compiler with the description of function that will be used later in the program. तो जिस तरह से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसी तरह से हमें फंक्शन भी डिक्लेयर करना होता है जो कंपाइलर को बताता है कि ये फंक्शन इस प्रोग्राम में यूज़ होने जा रहा है। तो उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो बतानी ज़रूरी होती है कि उसका नाम क्या है, वो कौन से आर्गूमेंट या कितनी वैल्यूज़ इनटेक करेगा और कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, उसकी टाइप क्या होगी। तो डिस्क्रिप्शन बतानी ज़रूरी है कंपाइलर को। तो जिस तरह से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसी तरह से हमें फंक्शन भी डिक्लेयर करना है और उसकी डिस्क्रिप्शन बतानी है, उसका नेम, उसका इनटेक और उसकी रिटर्न टाइप। It's defined the function before it being used. किसी भी फंक्शन को यूज़ करने से पहले उसे डिक्लेयर करना ज़रूरी है। लाइक वेरिएबल्स, जैसे वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसे डिक्लेयर करना ज़रूरी है, इसी तरह से फंक्शन को भी डिक्लेयर करना ज़रूरी है। फंक्शन डेक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप नीड टू बी रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो जिस तरह से हम वेरिएबल्स जो है वो बिगिनिंग में या यूज़ करने से पहले हम डिक्लेयर कर देते हैं, इसी तरह से फंक्शन को भी हम शुरू में ही डिक्लेयर कर देंगे, बिगिनिंग पे ही डिक्लेयर कर देंगे। यूज़ करने से पहले बहरहाल उन्हें डिक्लेयर करना ज़रूरी है। और इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ें आ जाएंगी? फंक्शन डेक्लेरेशन या प्रोटोटाइप मस्ट हैव a return type indicating the variable that the function will be returned. Syntax for the function prototype: return type, function name, and list of arguments. For example, we have this prototype double, scared, double number. So double over here is a return type, mean this scared function would return a value and the type of that value would be double. And over here double number mean this scared function is getting a value, that value would be placed in number and the type of this number would be double. So this scared function is getting one value and returning one value of type double, getting double type value and returning double type value. Similarly, void print report, int report number. So print report function, print report is a function name, int report number. One argument is there, it is getting one value, report number, and the type of this value would be int and return type is void. Void mean no value is being returned. This print report function is getting one value of type int but returning no value. So we will place void over here indicating that no value is being returned from this function. If we have another function, get menu choice, this is the function name. This int indicate that one value is being returned and that value type is of int. जो वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं उसकी टाइप क्या है? इंट है और आर्गुमेंट में हमारे पास वाइड है। इसका मतलब यह है कि कोई वैल्यू गेट नहीं की जा रही, किसी दूसरे फंक्शन से इनटेक नहीं की जा रही। सो यहाँ पे वाइड नल को शो कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये गेट मेन्यू चॉइस का जो फंक्शन है ये किसी दूसरे फंक्शन से कोई वैल्यू नहीं ले रहा, जबकि रिटर्न एक वैल्यू कर रहा है और वो इंट है। और इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे भी वाइड हो और यहाँ पे भी वाइड हो तो उसका मतलब ये होगा कि ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है और ना कोई वैल्यू गेट कर रहा है। तो एक दफ़ा दोबारा इन प्रोटोटाइप्स को चेक कर लें। स्केयर्ड का फंक्शन
एक एक वैल्यू इनटेक कर रहा है ऑफ टाइप डबल और एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है ऑफ टाइप डबल। प्रिंट रिपोर्ट का फंक्शन एक वैल्यू इनटेक कर रहा है ऑफ टाइप इंट और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। तो चूंकि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा इस वजह से वी वुड प्लेस वाइड ओवर हियर। गेट मेन्यू चॉइस, दिस फंक्शन is returning one value of type int and getting no value, and as it is getting no value so we would place void over here। तो जब भी हम फंक्शन के प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन की बात करेंगे तो हम उसकी डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे कि उसका नेम क्या होगा, वो कितनी वैल्यूज इनटेक कर रहा है और कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो जो वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा उसकी टाइप हम लिखेंगे और जो वैल्यू इनटेक कर रहा होगा उनके वेरिएबल विद टाइप्स लिखेंगे। और अगर कोई फंक्शन कोई वैल्यू इनटेक नहीं कर रहा तो हम वाइड लिखेंगे और अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो हम यहाँ पे भी वाइड लिखेंगे। तो यहाँ पे एक बात याद रखें कि एक फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है, एक फंक्शन एक से ज़्यादा वैल्यूज रिटर्न नहीं कर सकता। एक फंक्शन एक से ज़्यादा वैल्यू इनटेक तो कर सकता है लेकिन रिटर्न एक ही वैल्यू कर सकता है, एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। एक फंक्शन या तो ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, मीन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, या फिर मैक्सिमम एक वैल्यू रिटर्न करेगा, मिनिमम ज़ीरो एंड मैक्सिमम वन वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन इनटेक जो है वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स जो है वो कर सकता है। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइप की वैल्यू वो इनटेक करेगा। हो सकता है वो एक डबल वैल्यू इनटेक कर रहा हो, दूसरी फ्लोट इंटीजर वैल्यू कर रहा हो, तीसरी फ्लोट वैल्यू कर रहा हो। तो आप यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ रिटर्न हो रही हैं उनको जो भी वैल्यूज़ इनटेक हो रही हैं विद टाइप आप यहाँ पे उन्हें डिक्लेयर करते हैं। लेकिन रिटर्न वो एक ही वैल्यू करेगा, मैक्सिमम मिनिमम ज़ीरो, कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा। तो अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो इन दैट केस आप वाइड लिखेंगे और अगर कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है तो फिर उसकी रिटर्न टाइप लिखेंगे, इंटीजर है या फ्लोट है। तो यहाँ पे याद रखें कि अगर हमें किसी फंक्शन से एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रिटर्न करवानी हो तो इन दैट केस फिर हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल करेंगे, हमारा नेक्स्ट कमिंग टॉपिक है। लेकिन विदाउट पॉइंटर उसने मैक्सिमम एक वैल्यू रिटर्न करनी। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करवानी हो तो उसके लिए हमें फिर पॉइंटर्स का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है जी फंक्शन डेफिनेशन। इट इज़ द एक्चुअल फंक्शन दैट कंटेन द कोड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड and should be identical to the function prototype। हमारे पास ये जो लाइन है ये एग्जैक्टली सेम होगी जो हमारी प्रोटोटाइप पे, ये वाली लाइन जो हमारा प्रोटोटाइप है वही हमारी ये फर्स्ट हेडर जो फंक्शन हेडर होगा। फंक्शन हेडर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू फंक्शन प्रोटोटाइप। हेडर में हम उसी तरह से उसकी रिटर्न टाइप बताएंगे, फंक्शन नेम बताएंगे और लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स विद डाटा टाइप्स। और ये वो प्रॉपर जगह है जहाँ पे हम कोड लिखेंगे जो फंक्शन की बॉडी कहलाता है। इस फंक्शन की बॉडी में एक्चुअल आपकी स्टेटमेंट्स आएंगी जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगी। तो फंक्शन डेफिनेशन इज एक्चुअली द रियल फंक्शन डेवलप्ड। तो ये फंक्शन की बॉडी है, दो चीज़ों से फंक्शन डेफिनेशन मिलकर बनती है, फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी। फंक्शन हेडर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू फंक्शन प्रोटोटाइप and function body contain the set of statements that would perform a specific task। ये आपकी फंक्शन बॉडी होगी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ फंक्शन हेडर like this float conversion float celsius। अब अगर हम इस फंक्शन हेडर पे फोकस करें तो फंक्शन नेम हमारा क्या है, कन्वर्जन है। सेल्सियस की वैल्यू जो है वो इनटेक कर रहा है।
और ये फ्लोट जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा कन्वर्जन का फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा और जो वैल्यू रिटर्न होगी वो फ्लोट टाइप की होगी। तो ये रिटर्न टाइप हमारी फ्लोट है, मीन जो वैल्यू रिटर्न की जाएगी वो फ्लोट टाइप की होगी और जो वैल्यू गेट की जाएगी वो भी फ्लोट टाइप की होगी। तो यहाँ पे इनटेक वैल्यूज आ जाएंगी और ये हमारी रिटर्न टाइप आ जाएगी और ये फंक्शन का नेम आ जाएगा कन्वर्जन। फंक्शन की बॉडी में हम फॉरेनहाइट का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ऑफ टाइप फ्लोट एंड दिस फॉरेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 33.8। तो जो भी सेल्सियस की वैल्यू हम गेट करेंगे ये वाली, ये वैल्यू 33.8 से मल्टीप्लाई होकर फॉरेनहाइट कैलकुलेट हो जाएगा एंड रिटर्न फॉरेनहाइट, जो फॉरेनहाइट की वैल्यू कैलकुलेट होगी वो फॉरेनहाइट की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। और चूंकि फॉरेनहाइट की वैल्यू फ्लोट है इस वजह से हम यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे। तो सेल्सियस की वैल्यू जो भी फंक्शन गेट करेगा उस वैल्यू को 33.8 से मल्टीप्लाई करके फॉरेनहाइट कैलकुलेट करेगा और फिर फॉरेनहाइट की वैल्यू रिटर्न करेगा। इट मीन ये फंक्शन कर क्या रहा है कि टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड और सेल्सियस इनटेक कर रहा है और टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट रिटर्न कर रहा है उसे 33.8 से मल्टीप्लाई करके। तो एक वैल्यू सेंटीग्रेड की इनपुट हो रही है ऑफ टाइप फ्लोट और एक वैल्यू फॉरेनहाइट रिटर्न हो रही है ऑफ टाइप फ्लोट। तो ये रिटर्न टाइप है और ये इनटेक वैल्यू है। तीसरी अहम चीज आ जाती है फंक्शन कॉल। जैसा कि फर्स्ट टाइम ही आपको बता दिया गया था कि एक फंक्शन एग्जिस्ट करने के बावजूद, एग्जिस्ट होने के बावजूद उस वक्त तक अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता जब तक उसे कॉल नहीं किया जाता। तो जब भी आप फंक्शन से टास्क परफॉर्म कराना चाहें तो उसके लिए फंक्शन को कॉल करना ज़रूरी है। अगर एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और आप उसे कॉल नहीं करते तो इट वुड नॉट परफॉर्म इट्स टास्क। सो टू execute the function, to activate the function, it need to be called. A function can be called by specifying name and list of argument enclosed in the parentheses and separated by commas. If there is no argument, empty parentheses are placed after function name, and if function return a value then function call is written as assignment statement. सो अगर आप इसकी बात करें तो यहां पे सम इज योर फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस में जो x, y है ये आपके आर्गुमेंट्स हैं जो फंक्शन जो है वो लेके जा रहा है या जो वैल्यूज पास की जा रही हैं वो x और y की हैं। अगर वैल्यू एक फंक्शन लेके जा रहा है या पास की जा रही हैं तो यहाँ पे वो वेरिएबल्स रखेंगे जिनकी वैल्यूज लेके जानी है। लेकिन अगर कोई फंक्शन कोई वैल्यू लेकर नहीं जा रहा तो ये पैरेंथेसिस आप एम्प्टी छोड़ देंगे, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं आप लिखेंगे। तो अगर एक फंक्शन वैल्यू लेके जा रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि आप यहाँ पे वो वैल्यूज लिखेंगे, और अगर एक फंक्शन कोई वैल्यू लेके नहीं जा रहा तो आप ये पैरेंथेसिस को ब्लैंक जो है वो रहने देंगे। फॉर एग्जाम्पल, if you write this statement as sum blank parenthesis and semicolon, this would be the indication that sum is called and no argument is being passed. And if you write a variable, then it means that sum is being called with one argument, one value is being passed. And if it is extended with y, then it means that sum is being called with two arguments, two values are being passed. And similarly, you can extend it with z if three values are being passed. But if no value is being passed, then you will keep these parentheses empty. And on the other hand, if function is not returning any value,
You will write this in a simple way, but if the function is returning some value, you would place a variable like a. This a would indicate the value that would be returned from sum would be assigned to this variable a. So if the function is returning some value, then while calling that function, please place it with some assignment operator equal to and with some variable, so that when the value is returned, the value would be assigned to that variable. So if sum is returning some value, that value would be assigned to this variable a. But if sum is not returning any value, you would keep this sum in this way. So this statement, this one is indicating that sum is being called with two argument, मीन दो वैल्यूज को जो है वो लेके जा रहा है x और y की वैल्यू को, और एक वैल्यू रिटर्न हो रही है, और जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो वैल्यू a को असाइन होगी। लेकिन अगर वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो आप इसके अगेंस्ट कोई वेरिएबल जो है वो नहीं लिखेंगे और सिंपली इसी तरह से कॉल करेंगे। लेकिन अगर फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो फिर हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिखेंगे जिसमें वो वैल्यू आके आपकी स्टोर होगी, और जो वैल्यूज वो पास कर रहा है वो आप पैरेंथेसिस में रखेंगे। और अगर आप पैरेंथेसिस को ब्लैंक छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि सम जो है वो कॉल हो रहा है लेकिन कोई आर्गुमेंट उसमें पास नहीं हो रहा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन आज आपने देखा, और फंक्शन आपका क्या है? फंक्शन इज सिंपली अ कंपोनेंट, अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। और प्रोग्राम में फंक्शंस बनाने के एडवांटेजेस भी आपने डिस्कस किए। मीन जब आप प्रोग्राम को पार्ट्स में या फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं तो वो कितना सिंपल हो जाता है। और फिर आपने देखा कि एक फंक्शन जो है जब आप डेवलप करते हैं तो उसके लिए किसी भी फंक्शन के रन होने के लिए, उसे एग्जीक्यूट होने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है: फंक्शन डेक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल। तो जब भी आपने प्रोग्राम बनाना है और यूज़र डिफाइंड फंक्शन पे काम करना है तो आपने ये तीनों चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने फंक्शन डिक्लेयर भी करना है जिसमें उसकी डिस्क्रिप्शन बतानी है, फंक्शन डिफाइन भी करना है जिसमें आपने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या कोड लिखनी है, और फिर उसे फंक्शन को कॉल भी करना है, क्योंकि जब तक आप फंक्शन कॉल नहीं करेंगे तब तक इवन दो कि वो डिक्लेयर हुआ हुआ हो, डिफाइन हुआ हुआ हो, जब तक आप कॉल नहीं करेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो फंक्शन को जब भी आपने, जितनी दफ़ा भी आपने कॉल करें, कॉल करना है या एग्जीक्यूट करवाना चाहेंगे तो उसके लिए फ़ंक्शन को कॉल करना कंपलसरी है। ये हो सकता है कि आप एक प्रोग्राम में फंक्शन बनाएं और उसे कॉल ना करें तो वो अपना टास्क परफॉर्म नहीं करेगा, और ये भी मुमकिन है कि आप एक फंक्शन बनाएं और उसे मैनी टाइम्स कॉल करें, जितनी दफ़ा आप उसे कॉल करेंगे वो अपना टास्क परफॉर्म करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फंक्शन जो है जब भी आपने डेवलप करना है तो उसके लिए इन तीन चीज़ों का ख्याल रखना है: डेक्लेरेशन का, डेफिनेशन का और कॉल का। until or unless you do not call the function would not be activated। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आगे स्टार्ट करें।